Mansi, you look beautiful today. So this is your first film, right? सबसे to be very honest, horror genre में act करना अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge होता है because so many expressions are involved, so many emotions are involved. तो आपका experience कैसा रहा? I think it was a very adventurous experience, and the star cast was amazing. The team was very cooperative, and so the film revolves around a character called Simran. Her spirit is trapped in a painting, and then आप लोग देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोग को ये बहुत पसंद आएगी. All right, so Mansi, because this has been your first film, and there are people who have been in the industry for quite some time now. Like we have Gabby Chahal, we have Surendra Palji, and we've had Zubair K Khan. So ऐसे artists जो इतना काम कर चुके हैं, उनके साथ काम करने का आपका experience कैसा रहा? It was difficult to cope up because their experiences, their acting, it speaks. But then everybody was very cooperative. The team was amazing gradually, so I was able to cooperate, and then the film went well. Okay, fantastic. So now we have here one of the leading ladies of the film. A big round of applause for her. Now, please stay. I would like to call upon Mr. Zubair K Khan, a very young talent who's done 7-8 films already, and he's a part of this film. And he plays the lead, the protagonist in the film. So I would just want to know that you've done so many films, and doing a horror film like this, a romantic horror film like this, how was the experience? Before I start, I'm very honored. Firstly, I'm very good afternoon and all. I'm very connected to this film because this film has taken so much time and so much effort and so much of hard work of each and every crew and each and every member, including actors. You guys have seen the trailer, and trailer मैंने जब देखा था तो I was like hell. I was like actually speechless because I didn't expect that this much high of the Sanjeev bhai इतना अच्छा बना लेंगे. But yes, horror is a different thing. I have done horror in television, and whenever an actor associated with any project, I always feel like this that the film should be good, the team should be good, and I always try to make families instead of films. So मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड जब रिजल्ट बन के आया, when I was giving takes and I was shooting, and इतना ज़्यादा हम लोग ने एफर्ट डाला, इतनी ज़्यादा मेहनत करी. The film has been shot in नैनीताल and मसूरी. And I remember मानसी के साथ जब मैं गाना शूट कर रहा था तो it was I guess 3 degrees Celsius, and I was shivering like anything, and I was shooting, and Sameer and Sanjeev sir जो मेरे साथ पूरे टाइम रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों ने इतना कोऑपरेट किया है. बिकॉज एज एन एक्टर अगर आपको इतना अच्छी टीम मिलती है तो 100% रिजल्ट अच्छा आता है. एंड आई रिमेंबर इस फिल्म के लिए मैंने एक दिन में 28 घंटे शूट किया था, एंड कंटिन्यूसली 28 to 29 आवर्स. मुझे कब शूटिंग की मैंने मुझे पता भी नहीं लगा, एंड इतना अच्छा रिजल्ट है जो आप सब लोग ने देखा. सो आई एम ऑनर्ड, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आवर प्रोड्यूसर्स जिन्होंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया. थैंक यू सो मच टू द डायरेक्टर्स, थैंक यू सो मच टू द टीम, द सिनेमेटोग्राफर, द कोरियोग्राफर, एवरीवन. सबका इतना कंबाइंड एफर्ट निकला. सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड ये फिल्म रिलीज हो रही है, सो ज़रूर जाके देखें. Alright, thank you so much. And as you say कि नैनीताल और मसूरी में 3 डिग्री टेम्परेचर पे शूट करना, मतलब a big round of applause for them because they worked really hard to make films possible. Each and everyone, I guess. Yes, each and every technician also. Yeah. Yes, so everybody works really very hard. जो हमें ये ट्रेलर देखते हैं, हम इसको सिर्फ 2 सेकंड या 30 सेकंड्स में देख लेते हैं और हमें लगता है अच्छा फिल्म बनी है. But what goes behind it is the thing that you really have to applaud for. So now, as we all know, that a film cannot be started or initiated if we do not have a great director and a writer and a producer to back it up. So a big round of applause. With a big round of applause, I would like to call upon stage the director and the writer of the film, Mr. Sanjeev Rajput. Please be here. तो सर, आप फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और ये जो हॉरर का जो जॉनर है, सो ये बेसिकली ये जो जॉनर है आजकल की फिल्मों के तौर से थोड़ा हटकर है, क्योंकि आजकल बायोपिक्स बन रही हैं, हिस्टोरिकल फिल्म्स बन रही हैं, और एंटरटेनमेंट फैमिली ड्रामास बन रही हैं, पर जॉनर हॉरर हमेशा चलता है. तो इसका ख्याल आपको आइडिया सबसे पहले कब आया कि मैं एक हॉरर फिल्म लिखूंगा और बनाऊंगा? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए और इतना सारा प्यार दिया. मेरे को सबसे पहले जो आइडिया, जैसे मैडम ने पूछा कि इट्स माय फर्स्ट फिल्म, मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट किया था, एंड देन इट्स माय फर्स्ट. एंड कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच. मैं बहुत सबसे पहले तो सबको थैंक्स बोलूँगा जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया. एज टोल्ड जुबैर के खान, ही वर्कड 28 आवर्स
कंटिन्यू एट दैट टाइम 3 टेम्परेचर था, माइनस मतलब माइनस में भी था वहाँ टेम्परेचर, क्योंकि बर्फ़ भी गिर रही थी कहीं कहीं। तो हम लोगों ने इतना जो है सब लोगों ने मिल करके मेहनत की इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और जब मुझे आइडिया आया उस टाइम पे मैं इस लाइन में नहीं था एग्जैक्टली। आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, देन प्रिपरेशन भी मैं कर रहा था IAS की उस टाइम पे। और IAS की प्रिपरेशन के साथ साथ मेरे को एक आइडिया आया कि मुझे फिल्म लाइन में जाना चाहिए। एक बंदे से मिला और उसने मुझे फॉर्म भरने के लिए बोला था एग्जैक्टली कि इस लाइन में भी कोर्सेज होते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, कि मुझे पता नहीं था इस लाइन में कोर्सेज होते हैं। और तब मुझे लगा कि मुझे भी इस लाइन में जाना चाहिए एंड डिसाइडेड। और तब मैंने फिल्म लिखी वांटेड दिस एंड बहुत अच्छी लिखी सर, ट्रेलर से पता चल रहा है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। बहुत अच्छी लिखी और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया दैट आप IAS की प्रिपरेशन करते करते फिल्म लाइन में आ गए। थैंक यू सो मच सर। नाउ एज वी ऑल नो दैट विदाउट अ प्रोड्यूसर अ फिल्म कैन नॉट बी कंप्लीटेड, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। कंप्लीटेड तो बहुत बात की बात है, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड बिकॉज हर चीज के लिए पैसा लगता है बस। Yes, so we have with us a very young, a very talented and a very charming producer amongst us, who is the producer of the film, Mr. Nitin Dixit, and he's also played, by the way, he's also played a cameo in the film. A big round of applause for him. So, Nitin ji, आप इतने young हैं और आप producer हैं। हाँ, बोलिए। वो प्रोड्यूसर बनना बुरी बात भी नहीं। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो वो सोच रही हूँ कि आप यंग हैं और प्रोड्यूसर हैं, बिकॉज हमने प्रोड्यूसर्स कितने थोड़े एजेड ही देखने को मिलते हैं ना प्रोड्यूसर्स, थोड़ी ना यंग कोई के बोलता है वो प्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्म। सो टेल मी व्हेन यू मेड दिस, करना चाहिए ना, सब एज के सब एक्टर मिलेंगे आपको, राइटर भी है इस एज के। सो यू आर सेटिंग अ बेंचमार्क कि यंग प्रोड्यूसर्स का भी एक बेंचमार्क होना चाहिए। हम आगरा के हैं, कुछ यूनिक ही करते हैं। ओके, तो सर ये जो आपने नितिन जी ये जो पिक्चर बनाई, आपने इस पिक्चर में पैसा लगाया एंड आपने इसमें एक छोटा सा कैमियो भी किया, तो प्रोडक्शन के साथ साथ आप एक्टर का बनने का भी ख्याल रखते हैं? जी मैम, कैरेक्टर तो मैंने इसमें प्ले किया है बिकॉज माय फादर इज नॉट हियर, मिस्टर रविकांत दीक्षित, इसलिए मैं ही प्रेजेंट कर रहा हूँ उनका। तो मैं इसमें भी एक छोटा सा मेरा इसमें कैरेक्टर है। तो इस मूवी के लिए बहुत कुछ हुआ और सब कुछ एक्सपीरियंस लाइफ के, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। सर ने सही कहा, संजीव सर ने, कि माइनस में टेम्परेचर था, उन्होंने शूट भी किया 28 आवर्स। विवेक के खान सर ने बहुत कोऑर्डिनेट किया, बहुत सबने सपोर्ट किया। मूवी कंप्लीट हुई। ट्रेलर कैसा लगा सबको? तो ट्रेलर जब अच्छा लगा तो मूवी भी देखना चाहिए। अब इन्हीं लोगों से प्रोड्यूसर बड़ा बनता है ना। So he's not just young, but he's also very confident. So that's fantastic. Thank you so much. Well, I would like to tell you that we do not have the entire star cast of the film because, unfortunately, because of their busy schedules and dates, non-availability of dates. But I would still want to announce their names. We have in this film Zubair K. Khan, who's with us, Krishna Chaturvedi, Diana Khan, Gary Chahal, Mansi Gupta, Nitin Dixit, and Surendra Pal Singh ji, Sunny Thakur, and we also have a very charming and a very young actor who's a budding actor. He's present here with us, Sharan Anandani. Yeah. A big round of applause for him. So he's playing one of the characters in the film. I think you're playing the friend of the protagonist. Yes, I was really very scared and very nervous because it's my first film, as you know, and I was lacking experience. So now when I started working with such a talented cast, such a known cast, even Gary Chahal, Surendra Pal Singh ji, so they really boost your confidence by performing, and you really learn a lot from them. So after shooting for this film, Touchwood, I've picked up a lot of projects, and it's thank you to Mr. Sanjeev sir, Mr. Ravikant Dixit, Nitin. And your hard work as well. Absolutely, everybody's worked hard. Even a spot boy has worked hard. Even a producer has worked hard. Everybody's worked hard. I remember when I came on the set for the shooting and his scene was going on और इस बंदे ने I guess बहुत ज़्यादा ऊंची height से mountain से and he was on cable और he got himself scratched up all over the body and but because his death scene was shooting and it was fab. I was very happy and when I was seeing the enthusiasm of this kind of actor, I was like, man, मुझे और ज़्यादा hard work करना पड़ेगा set पे because hats off to him, hats off. So we have an actor, a budding actor in his first film, and he got scratched all over his body because he was shooting a death scene. So that is something commendable. A big round of applause for him. Thank you so much, the Starcast. I would request you to please stay here. And I would also want to call upon stage one of the actors that we have here.
he introduced himself as Rudra to me, and this is his first film. A big round of applause for him. ओके रुद्रा, सो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि किसी को तो बॉडी पे स्क्रैचेस आ गए, कोई 3 डिग्री, हाँ किसी ने बहुत बहुत घंटे शूट किया. आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि ये आपकी पहली पिक्चर है, राइट? पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा सबको, और बहुत मज़ा आया पिक्चर शूट करने में, क्योंकि वहाँ यहाँ पे कृष्णा चतुर्वेदी नहीं है, जिसका मेरी बहुत बनती थी श्याम भाई के साथ, बहुत मज़े किए. और मेरा करेक्टर भी ऐसा कुछ था समीर का, वो तो मस्ती करता था, थोड़ी बहुत मस्ती, भूत से डरता नहीं है, हाँ आज आने दे भूत को, तो उस तरह का करेक्टर था, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया. बहुत एंजॉय किया, मतलब आप ही थे अकेले जो भूत से पंगे ले रहे थे, बाकी सब डर रहे थे. ऐसा कुछ था. अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि ये अकेले हैं इस पूरी स्टारकास्ट में जिन्होंने भूत से पंगा लिया है, जो आसान बात नहीं है. तो थैंक यू सो मच फॉर and the artists who worked, and congratulations and all the best to all of you. And now media, we are open for Q&A. Hello, yes, before we go ahead with the photo and Q&A, I request everyone. everybody to please be seated. I am extremely sorry, I forgot to take the name of the casting director, and he is a very young casting director, and he introduced himself to me. Madam, मैं ना casting director हूँ इस film का. So sorry, last but not the least. तो ऐसी स्टार कास्ट चुनने का, इतने टैलेंटेड, इतने यंग लोगों को सिलेक्ट करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी मैम, मेरे पास संजीव जी आए थे एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने मेरे को बोला था ऐसे एक्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा कॉपरेट करे, और लाइक दिस सबसे ज़्यादा कॉपरेटेड आर्टिस्ट यही है. सुबेर हाँ जी, जी, बहुत ज़्यादा, जिन्हें 18 घंटे शूट किया. 18 वो भी 3 डिग्री टेम्परेचर में. ओके, तो इसलिए मैम. thank you so much. Yeah, he wants to say something. So there's one thing which I don't think many people know about Zubair. He's very hardworking as well. He's very down to earth, very enthusiastic, and very positive towards all the people, no matter what. That's great. So that quality, I guess, every actor, every human being should have. That's very great. So बहुत कम देखने को मिलता है यार, आपस में आर्टिस्ट एक दूसरे की कितनी तारीफ कर रहे हैं. It's all the teamwork. That's what I said. We don't make films. We make families. That's fantastic. So now media, you're open for Q&A, and it was lovely interacting with all of you. Have a good evening and enjoy the trailer of the film. Congratulations. Photo. Close angle. Please look. Yeah. चलो. This side. बीच में राकेश थोड़ा पीछे आ रहे हैं, थोड़ा पीछे आइए. क्लोज हो जाए या सेंटर हो जाए, ये पोस्टर के सेंटर में. अरे बस ठीक है. बस. यहाँ सेंटर लुक, यहाँ पे. यहाँ सेंटर में देखो सब, राइट कॉर्नर. यहाँ सेंटर लुक. यहाँ ऑल ऑफ यू राइट साइड, वन मोर. यहाँ सेंटर लुक. यस. यहाँ करम हट जाए भाई, हट जाए. यहाँ इधर राइट पे थोड़ा. कहाँ जा रहे हो? सोलो. चलना है. सबसे पहले तो congratulations to you, Zubair, and Thank you so much. something about your character. What is the character's name and your film Haunted Hills? क्या है? सर बेसिकली आई स्टार्ट विद द नेम ओनली बिकॉज हॉन्टेड हिल्स नाम है, तो हॉन्टेड हिल्स से रिलेटेड हिल्स पे ही कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा हम लोग दर्शाते हैं. बट रिगार्डिंग माई कैरेक्टर, आई हैव प्लेड रोहित, और दिस इज़ अ स्टोरी बेस्ड ऑन हनीमून कपल जो हनीमून के लिए हिल रिसॉर्ट पे आते हैं, एंड उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जब उनके साथ में ट्विस्ट होता है, और बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, और फिर किस तरीके से आगे फिल्म मोड़ लेती है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा. बट या आई हैव प्लेड रोहित. मानसी.
So the film revolves around a character called Simran. Her spirit is trapped in a painting. बहुत चुलबुली सी लड़की है और काफ़ी रोमांस दिखाया है फिल्म में पहले, उसके बाद हॉरर दिखाया, दो साइड्स दिखाई हैं एक ही कैरेक्टर की. सो यस, एक गर्ल के काफ़ी साइड्स दिखाए हैं, डबल साइड्स भी दिखाए हैं, एंड देन नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं. सो इट्स अ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के Yeah. अलावा मैं बताना चाहूँगा बिकॉज द स्टोरी स्टार्ट्स विद द सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल The सॉन्ग्स songs आर are देयर. amazing. मोहम्मद इरफान ने गाया है, पलक मुचाल का गाना है. जी. बहुत ब्यूटीफुली दे हैव पिक्चराइज्ड द सॉन्ग, जिससे रोमांटिकली बिकॉज वी आर कमिंग ऑन वैलेंटाइंस, सो किस तरीके से रोमांस हॉरर में टर्न हो जाता है. तो व्हेन यू वॉच द फिल्म आप लोगों को समझ में आएगा कि इंटेंसिटी जो फिल्म का ग्राफ है वो इवेंचुअली 0 से 10 पे जाता है. आप दोनों की पहली फिल्म है. What was the reason, like, you know, normally जो डेब्यू करते हैं शायद थोड़ा जी, इनकी तो मेरी eighth पहली film फिल्म है. नहीं है. माय आई हैव डन फिल्म, या दैट्स हर फर्स्ट डेब्यू आई गेस. टेल के तुम्हारा डेब्यू करने का तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस? हॉरर फिल्म के थ्रू या फिर कितनी रोमांटिक भी है. या रोमांस का एलिमेंट एक्चुअली आई गॉट लकी बाय चांस. मुझे काफ़ी लकी थी मैं. मेरा पहले मैंने MBA किया, लंदन से कंप्लीट किया. मेरा इतना ऐसे कोई एज सच था नहीं उसमें. देन मुझे इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले करने को मिला, एकदम से लाइफ चेंज हो गई इस कैरेक्टर की वजह से, इस मूवी की वजह से. और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. हॉन्टेड सीन्स रात को शूट करना, जैसा ज़ुबैर ने बताया, 28 आवर्स शूट करना, इट वाज डिफ़िकल्ट, बट देन उससे अपना स्पिरिट पता चला. सो येस, इट वाज एन अमेजिंग because एक्सपीरियंस it's very फॉर hard अस. to maintain the expressions. Yeah. आपका आप ठंड में कुकर रहे हो और आप expressions में smile कर रहे हो. Yeah. So that's actor's job, but yeah, that's a very different experience, and I guess she has loved it, I have loved it. Yeah. there are lots of films which come on the same subject. Yeah. Meaning what you're seeing is Yeah. कोई, you know, Yeah, लोग yeah, होते हैं, yeah. कोई हिल स्टेशन पर जाते हैं, Yeah. haunted house. Yeah. What do you mean? एक्चुअली इस फिल्म में डिफरेंट इज ना, वी हैवंट शोन द सोल बेसिकली. स्पिरिट दिखाई ही नहीं. स्पिरिट दिखाई तो उसका हार्डली 1 या 2 सीन्स होंगे. हम लोगों ने इट्स अ पजेस काइंड ऑफ स्टोरी. इट्स नॉट द स्टोरी काइंड ऑफ द स्पिरिट ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है. इट्स बेसिकली विच डायना हैज़ पोर्ट्रेटेड सो वेल, और उसके अंदर आती है स्पिरिट. तो बिकॉज ये जो जर्नी है, एक कहानी स्टार्ट होती है कि एक अधूरा सपना था उसका, एक लड़की का जो पेंटिंग बनाना चाहती थी. उसके अंदर पेंटिंग के अंदर वो बना नहीं पाती, अनफॉर्चुनेटली शी डाइड. तो वो जर्नी दिखाई है. और हम लोग ने ये मसाला नहीं दिया कि बिल्कुल इंग्लिश टच है और बिल्कुल हॉन्टेड. इट्स अबाउट ऑन एंड ऑफ हॉन्टेड है, और बिकॉज रोमांस भी है, फ्रेंड्स का जेलअप भी है. तो इस स्टोरी में यही डिफरेंट बताना चाहूँगा कि ये डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये फिल्म इज़ नॉट ओनली हॉरर, इट्स अ रोमांटिक हॉरर. तो आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा, फ्रेंडशिप भी देखने को मिलेगी, पीपल स्टैंड फॉर डिफरेंट पीपल, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कितना खड़ा होता है वो देखने को मिलेगा. तो और फिर एंड में किस तरीके से साथ में मिलके उस चीज़ से लड़ा जा सकता है. तो इट्स काइंड ऑफ लेसन वी आर गेटिंग. Yeah. Yeah. पहली फिल्म Yeah. कितना अच्छा रहा, कितनी उनके साथ लिंक थी, या See- फिर because sometimes difficult layer See, actually, I have done a TV also, और मेरी लास्ट फिल्म दोस्ती की साइड इफेक्ट थी, तो उनमें हादी अली अबरार ने डायरेक्ट की थी. व्हाट आई बेसिकली मैं जिस डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम इसलिए कर लेता हूँ बिकॉज इन द TV ऑल्सो यू नो योर कैरेक्टर वेरी वेल, और आप कैरेक्टर को पकड़ के चलते हो. तो डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं 3 महीने में, 4 महीने में, बट इफ़ यू आर इन योर कैरेक्टर डजेंट मैटर हु इज़ डायरेक्टिंग इट. एंड आई ऑलवेज से दैट कि अगर मैंने भी कभी एज अ न्यू कमर स्टार्ट किया था फ्रॉम TV टू फिल्म्स एंड एवरीवेयर. सो आई ऑलवेज फील के एज अ न्यू कमर फील ना करा के, एक फैमिली वाला फील करा के बनाई जाए कोई सा भी प्रोजेक्ट, चाहे TV हो चाहे फिल्म्स हो, वो बहुत अच्छा निकल के आता है. और एज एन एक्टर मुझे मानसी के साथ काम करने में या संजीव सर के साथ काम करने में कोई ऐसा झिझक नहीं हुई, क्योंकि फैमिली बन गए थे, टीम अप हो गई थी, साथ में खाना होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, तो अच्छा लगता है. बट आई नेवर थॉट दैट आई एम वर्किंग विद अ न्यू कमर. दे आर ऑलरेडी ट्रेंड. वो जहाँ से भी आए ना ऑलरेडी ट्रेंड हो गया. तो ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट बिकॉज इन द सॉन्ग रात को जब हम लोग शूट कर रहे थे, आई हैवंट एक्सपेक्टेड कि मानसी, बिकॉज आई डिडंट नो हर, मानसी इतना अच्छा एक्सप्रेशंस के साथ में पूरा सॉन्ग शूट कर लेगी रात को. एंड अभी भी वेन एवर वी डिस्कस ऑलवेज अप्रिशिएट हर कि ये इसने बहुत अच्छा काम किया. एज अ न्यू कमर ये गाने में लगी ही नहीं है. जो भी आप गाना लॉन्च होगा, ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, सॉन्ग्स लॉन्च होने के बाद, म्यूजिक लॉन्च होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि शी डजंट सीम लाइक अ न्यू कमर इन द सॉन्ग. सो वही चीज़ हम लोग ने सीन में की है, तो कभी नहीं. और या डायना के साथ मैं अनफॉर्चुनेटली सीन्स नहीं हूँ, बट वी आर देयर ऑन द सेट्स. और मैं ऐसा एक्टर हूँ जो नए के साथ भी सीखने की कोशिश करता हूँ, पुराने के साथ भी सीखने की कोशिश करता हूँ. सो या इट वाज फन. The music is amazing. Actually,
मुझे लगा नहीं था, लाइक मेरी पहली फिल्म है और इतना अच्छा मुझे म्यूज़िक मिलेगा, मैं इतना लकी होंगी। उस म्यूज़िक में काम करना ही मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एंड आपको डेफिनेटली वो पसंद आएगा। मतलब कोई मुझे बोले कि यार मेरा मेरा जो बचपन से मैं गाना गा रहा हूँ और सोनू निगम की आवाज़ में मैं गाना गा पाऊँ, तो आई विल बी वेरी ब्लेस्ड एंड शी इज़ वेरी लकी। शी इज़ वेरी, आई मीन लाइक शी हैज़ संग द सॉन्ग ऑफ पलक मुच्छाल, जिसका इतना बड़ा नाम है, इतने बड़ी हिट हैं। तो बिकॉज व्हेन वी आर परफॉर्मिंग ना, हम लोग को पता नहीं लगा, क्योंकि वो फील होते हैं। ये दो गाने हैं फिल्म में, एक्चुअली 3 गाने, एक तो क्रेडिट्स में है, बट जो 2 गाने वो फील होते हैं। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं फील करके नहीं गा रहा हूँ। आई फेल्ट द सॉन्ग्स इवन बिकॉज मेल सॉन्ग इज़ ऑफ मोहम्मद इरफान, जो मैंने गाया है फिल्म में, और जो इनका है वो पलक मुच्छाल का है। तो नेवर फेल्ट लाइक कि मतलब इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। Absolutely. I expect this only कि आप लोग this February the film is releasing, आप लोग जाएं, देखें, हम लोग की मेहनत देखें, 28 घंटे एक दिन में शूट कैसे करते हैं वो देखें, और गाना देखें। गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, और स्टोरी लाइन है, अभी ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया है, इवन द मोशन पोस्टर इज़ आउट एंड द पोस्टर इज़ आउट, सो देखेंगे तो मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। His name नितिन दीक्षित। नितिन दीक्षित। यस। संजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो अपनी फिल्म के लिए, हॉन्टेड हिल्स। जैसे आपने लिखी है, आपने कहा था कि आप IAS के लिए कुछ करने जा रहे थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो मतलब ये चाह नहीं रहे थे कि डायरेक्टर, लेकिन बन गए। सबसे पहले तो वो उसके बारे में बताइए, और ये हॉरर वाली स्टोरी के बारे में। Actually, first of all, I would like to tell you thank you so much to all. And as अभी आपने बताया कि मैं IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। एक्चुअली मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं IAS बनूँ, और मेरी फैमिली के अंदर कोई अभी तक बहुत अच्छे लेवल पर कोई आधिकारिक तौर पे नहीं था। तो माई फादर ऑलवेज मुझे बोला कि तुम IAS की प्रिपरेशन करो, एंड आई वॉज डूइंग इट इन दिल्ली। एंड एट दैट टाइम मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलता है, और उसने मुझसे कहा कि सर, वो एक्चुअली फॉर्म था, वो इंग्लिश में था, एंड ही वाज अनेबल टू प्रॉपर्ली उसे रीड करने में और उसे फिलअप करने में उसे प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, और उस फॉर्म को मैं फिलअप करते करते एग्जैक्टली आई डायरेक्टली आस्क हिम कि यार फिल्म लाइन इस इंडस्ट्री के भी कुछ कोर्सेज होते हैं क्या? तो उसने कहा या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो मैंने वो देखा, तो मेरे को वो थॉट आया कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, और फिल्म इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट। एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। उसके बाद मैं नोएडा में मैंने प्रिपरेशंस किया डायरेक्शन के लिए, एंड देन और उसी टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, एंड मैंने फिल्म लिखी हॉन्टेड हिल्स। इसको लिखने में चीज़ें मैंने उसका भी एक्सपीरियंस लिया एज ए राइटर डायरेक्टर, मैंने सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने के बाद देन मैंने लिखा, और आई होप कि यस या ऑफ कोर्स या exactly you are right, so many movies are in our industry, but इसके अंदर एक स्पेशल थिंग है कि जहाँ हम लोगों ने शूट किया है, इट्स अ रियल लोकेशन एंड सो मैनी हैपनिंग्स। ये हम लोगों ने क्लाउड एंड में शूट किया है मसूरी में। वहाँ ऑलरेडी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जहाँ लोग कुछ लोग गए, उनको फील हुआ एक्जैक्टली। मैं खुद उस चीज़ को एक बार एक्सपीरियंस कर चुका था। बट कहना कि जब एक राइटर होता है तो उसको मिक्सिंग करके कुछ अलग डिफरेंट तरीके से लिखता है। तो क्योंकि वो जो लोकेशन है क्लाउड एंड बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, एज वेल वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग वहाँ जाते हैं, जाने के बाद इंजॉय करते हैं, बट वो थोड़ा हॉरिफाइंग है। लोगों को वहाँ जाने के बाद कुछ फील होता है कि यहाँ कुछ ऐसा है। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को हॉरर करना चाहिए और कुछ रियलिस्टिक लोगों के सामने लाना चाहिए। या एग्जैक्टली आई वुड लाइक टेल यू कि मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया भी, मैंने प्रीलिम्स दिया, और प्रीलिम्स के बाद में देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बट सडनली आई चेंज्ड कि आई हैव टू गो इन दैट। सर मे बी आई कांट से, बट कोशिश। हाँ जी, यस मैम। Commercial, everything has to be seen. What did you really think about this film, and you came as a producer for this? सो हॉरर मूवी का बनाने का रीज़न्स था, सबको बचपन से किसी का होता है कि मेरे को ये पसंद है, मुझे रोमांटिक सीन्स पसंद है, मुझे एक्शंस मूवी पसंद है। बचपन से था कि मुझे हॉरर मूवी पसंद थी, और हॉरर मूवी में ही मुझे वर्क करना था। इस वजह से ये हॉरर मूवी की थोड़ा सा डिफरेंट था सबके। हाँ, आपने सही कहा कि हॉरर मूवी सबकी एक जैसी होती है, रोमांटिक सीन्स और वो कपल साथ।
अलग अलग टेक्सचर्स होता है, अलग अलग एडिटिंग होती है, अलग लोकेशंस ली थी हमने, इस वजह से काफ़ी कोऑर्डिनेट किया था सर ने, अच्छा काफ़ी अच्छा किया था सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि हाँ प्रोड्यूसर बनना, काफ़ी घर वालों को मतलब कोऑर्डिनेट, डैडी को समझाना, घर वालों से मिलना। एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है, सब बिजनेसमैन थे, तो फिर इस लाइन में प्रोड्यूसर ही आना पड़ा। प्लानिंग कैसी है, थिएटर्स कितने मिल रहे हैं, क्योंकि फिल्म बन जाती है पर उसका प्रमोशन एंड देन अगेन गेटिंग इट थिएटर, वो उसके लिए किस तरह वर्किंग होती है? 100+ थिएटर है। हाँ या वी आर प्लानिंग फॉर थिएटर्स नाउ, राउंड अप अभी 200 to 250 थिएटर्स वी आर गोइंग फॉर, प्लानिंग फॉर दैट, एंड आई होप सो दैट वी विल बी बेटर, कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट्स। एंड और आप सभी का प्यार रहेगा तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।